Good morning. Today we are going to start our new chapter whose name is Chemical Kinetic. In plus 2 class, it is very easy chapter. Let's start. First is the definition of the chemical kinetic. What is the definition of the chemical kinetic? It is the branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction, factor affecting rate of reaction, and mechanism by which rate of reaction take place. तो इस चैप्टर के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और ये बताएंगे कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. What are the various mechanism how the reaction take place? Rate of reaction means speed of reaction. How much speed the reaction is taking place. Next है इसमें classification on the basis of rate of reaction. Classification. First is very fast reaction. Second is very slow reaction. Third one, the reaction neither very fast nor very slow. It means moderate speed reaction. And we are giving one example. Very fast reaction, when we take barium chloride in the test tube and add some amount of H2SO4, it gives white precipitate of barium sulfate and forms HCl. This reaction take place immediately at the same instant of the time. उसी टाइम रिएक्शन हो जाती है. जैसे ही हम बैरियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं वाइट कलर हमें मिल जाता है. नेक्स्ट इज वेरी स्लो रिएक्शन. We have already studied about the rusting of iron. It is the example of very slow reaction. It take place many times. The reaction take place many times. A long time interval the reaction will take place. Next is moderate speed reaction. The example of this one is the hydrolysis of. Hydrolysis means addition of water, ethyl acetate. We are just taking here ethyl acetate. Ethyl acetate, it is ester. When we add water, it gives us acid plus alcohol. When we add water to the ester, it gives acid plus में alcohol.
From here bond breakup OH. From H2O it gives H plus OH minus. OH minus goes to this side, C2H2OH it forms, and it forms acetic acid. So these are the examples of very fast reaction, slow reaction and moderate speed reaction. अब हमने बताना है रीजन, इसका रीजन क्या क्या है, क्यों कुछ रिएक्शन फास्ट होती है, कुछ रिएक्शन स्लो होती है। रीजन है इसका फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ। कुछ सब्सटेंस की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो वो आसानी से ब्रेकअप नहीं होते। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती है और वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। तो दिस इज़ द रीजन बिहाइंड दिस। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज द मेन रीजन फॉर शोविंग द वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और moderate speed reaction. Next, what is the meaning of rate of reaction? Rate of reaction, it is the change in concentration of product or reactant with respect to time. It is the change in concentration of product or reactant with respect to the time. हमने रिएक्शन ली, हमारे पास है रिएक्टेंट, क्या बना प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे हम, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ reactant with respect to the time interval and increase in concentration of product with respect to the time interval. कितना डिक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारे पास R1, आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन होगी R2, तो डिक्रीज कितना हुआ R2 माइनस R1 विद रिस्पेक्ट टू दी T2 माइनस T1। यहाँ टाइम है T1, यहाँ लिया T2, तो हम इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। Similarly, for the product we can write delta P upon delta T। रिएक्टेंट के केस में हम यहाँ साइन लगाते हैं माइनस का, प्रोडक्ट के केस में साइन होता है प्लस का। माइनस साइन यहाँ क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन का यहाँ पे मतलब है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा थी। जैसे हमने +1 क्लास में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में किया हुआ है। मान लिया इसकी हमने कंसंट्रेशन ली 10 एट टाइम t इक्वल टू 0, इसकी है 0। आफ्टर टाइम t ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो रिएक्टेंट क्या हुआ, कम हो गया, और प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज। यदि वैल्यू कम होती है वी अप्लाई नेगेटिव साइन, और यदि वैल्यू बढ़ती है तो हम प्लस का साइन यूज करते हैं। ये हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम फॉर 1 मोल।
रेट ऑफ रिएक्शन हम कितने के लिए लेते हैं, 1 मोल के लिए। अब हमारे पास हम रिएक्शन ले लेते हैं 5 मोल ऑफ ए react with 3 mole of B. It gives 2 mole of C and 4 mole of D. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस में कंसंट्रेशन ऑफ चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन ए अपॉन में टी। 4 हम लेते हैं 1 मोल, तो हम यहाँ पे कितने मोल है, 5 मोल। तो 1 मोल के लिए हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 5 से। तो ये हो जाएगा 1/5 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। बी के लिए 1 मोल 1/3 माइनस साइन हम यूज करेंगे, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। सी के लिए 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। एंड फॉर द डी 1/4 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं फॉर दी 1 मोल। 1 मोल के लिए सभी का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है, तो हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, इसको इसके इक्वल, तो सभी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हम बात करते हैं यूनिट की। फार्मूला हमारे पास है कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। कंसंट्रेशन हम किस में लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं मोल पर लीटर में, टाइम सेकंड में। तो फार्मूला हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड। यदि टाइम हम मिनट में लेते हैं तो हमारे पास यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर मिनट। So this is the unit of rate of reaction. Next, average rate of reaction. And instantaneous रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या इनकी डेफिनेशन होती है। फर्स्ट हम करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स सिंपली द रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ product or reactant in particular interval of time। तो हम पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जब हम बोलेंगे तो हम उसे बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। It is represented by the, as we have done the before, average rate of reaction for the product, reactant and product। for this reaction minus में डेल्टा R upon डेल्टा T is equal to the डेल्टा P upon डेल्टा T। Next, instantaneous rate of reaction, it is a change in concentration of product or reactant in particular instant of time। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, बाइक की स्पीड चेंज होती है,
विद इन 1 सेकेंड स्पीड चेंज हो जाती है, तो उस स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड फॉर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें हम लॉन्ग इंटरवल लेते हैं, इसमें हम उसी टाइम उसी क्षण स्पीड कितनी चेंज हुई उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। फॉर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वी राइट डी आर अपॉन डी टी। जब किसी में स्मॉल चेंज होता है तो हम डी लिखते हैं, और लार्ज चेंज को शो करने के लिए हम डेल्टा आर का यूज करते हैं। डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू दी डी पी अपॉन डी टी फॉर द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 फॉर दिस। Again, average rate of reaction, it is a change in the concentration of the product in particular interval of the for a long interval of the times instantaneous in a particular instant of times। उसकी स्पीड कितनी है, उसमें उसकी कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई। चेंज इन कंसंट्रेशन दोनों में ही है, इंस्टेंटेनियस में भी है और रेट ऑफ रिएक्शन में भी है। कितनी चेंज हुई लॉन्ग इंटरवल में और एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस के लिए फर्स्ट वी कैन गिव द डेफिनेशन, सेकंड हाउ कैन वी मेजर कैसे कर सकते हैं हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। तो हम बनाते हैं ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। हमारे पास है रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होगी। तो हमें ग्राफ इस वे में मिलेगा। फॉर बोथ द केस वी विल गेट ग्राफ लाइक दिस। अब हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है और इंस्टेंटेनियस निकालनी है। एवरेज का मतलब हम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लेते हैं, मतलब पहले मान लीजिए हमारे पास टाइम था t1, अब टाइम हो गया t2। कंसंट्रेशन उस टाइम पे थी x1, कंसंट्रेशन थी x2। तो t1 यहाँ है, t2 मान लिया यहाँ है। तो t1 के कोरस्पोंडिंग हमें क्या मिलेगा x1, t2 के कोरस्पोंडिंग हमें क्या मिलेगा x2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले ज़्यादा थी, पहले हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, अब जैसे जैसे टाइम बीता कंसंट्रेशन कम होगी। पहले ज़्यादा थी अब क्या होगी, कम होगी। तो हम एवरेज का फार्मूला लगाएंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दी माइनस में डेल्टा रिएक्टेंट अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू माइनस रिएक्टेंट हमारे पास है यहाँ पे x2 माइनस में x1, डेल्टा टी t2 माइनस में t1। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस के लिए हमने एक पर्टिकुलर टाइम पे बताना होता है। मान लिया हमने इस टाइम पे बताना है, इस टाइम पे हमने बताना है रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आई। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन पे हम टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं, या हमने टेंजेंट ड्रा कर ली जो इसे टच करती हुई जाएगी और इसे हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया। तो हम इंस्टेंटेनियस के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं, सेम है डी ऑफ आर अपॉन डी टी।
कितना चेंज हुआ ये हमने लेना है। यहाँ पे मान ली हमारे पास है एंगल थीटा, यहाँ ये माइनस साइन नहीं है, डी आर अपॉन डी टी, तो डी ऑफ एक्स चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में ये हमारे पास हो जाएगा टी, जीरो से स्टार्ट किया यहाँ पे हमने, तो ये हो जाएगा टी के इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास है एक्स के इक्वल। तो यदि हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये किसके इक्वल है, इसे हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है बेस। तो हमारे पास होता है एक्स, हमारे पास क्या है यहाँ पे पी, ये हमारे पास क्या है बेस पी अपॉन बी। तो हमारे पास है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल पी अपॉन बी, साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सिकेंट कोट, पी अपॉन बी हमारे पास क्या बन जाएगा टेंजेंट, टेंजेंट थीटा मीन्स स्लोप गिव अस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। टेंजेंट थीटा इसकी जो स्लोप है वो हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देगी। So these are the difference between the average rate of reaction and the instantaneous rate of reaction.